दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नरेंद्र काम सरेंडर, जब ये प्रधानमंत्री बने थे देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं। जीत को लेकर कहीं भी बहसोत्पादन नहीं है, फोटो उत्पादन चालू है। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ F-35 ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਲੰਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 에ਅਰਫੋਰਸ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਖਸਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਿਸਾਈਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲੌਕ ਤੇ ਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਤੇ ਭਈਆ ਜੀ ਹਰੀ ਐਜੈਕਟ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਡਿੱਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ 3 ਤਾਂ ਸ਼ੋਰ ਆ, 3 ਰਫਾਲ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਜੋ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਪਾਸੇ नहीं, क्योंकि हम तो न्यू इजराइल बनना है। तो हम जो फीलिंग है जो गुब्बारे में भरी गई है पिछले 10 साल से, जो हमने ज़ॉम्बी बनाए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ना अब तो हम ससुरा पाकिस्तान को तबाह कर देगा, भयंकर लड़ाई होगी। तो भयंकर लड़ाई का नतीजा यह निकला कि मोदी जी तो मूत दी है, अमेरिका के पास भागे कि भाई हमारी जान छड़ाओ, ये तो हमने पंगा ले लिया। हुण गल ये आ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਠ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਰਡ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹੁਣ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੱਢੋ ਪਟਾਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਛਿੱਤਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਨਾ ਹਮ ਤਾਂ ਗਊ ਕੇ ਜਾਏ ਹੈ, ਗਊ ਕਾ ਜਾਇਆ ਹੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਮੋਦੀ ਜੀ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 3 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ F-35 ਛੱਡ ਕੇ ਰੈਪਟਰ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੂਤ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲ ਤੇ ਕੋਡੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਬਾ ਦਬ ਪਹਿਲੀ ਝੁੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟ ਲਏ। ਤੇ ਮਿਗ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮਿਗ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ JF-17 ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆ ਪਏ ਆ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਲੇਮ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਦੌੜੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਭੱਜ ਲਏ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਖੜ ਗਏ, ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਰਕੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋਰ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋर्ट ਕੀਤਾ। पर हमें तो घमंडवा था, हमारे पास रफालवा था, तो रफालवा तो वड़ गया। मोदी भी जी 56 इंच दी आ ना, वो पाकिस्तान ने हुण मैनूं लगदा आ भी 26 इंच दी कर दित्ती छाती। इस तों बाद ये नां नहीं लैंदे, हुण ये नां नहीं लैंदे। ये हुण तुसीं वेख लिओ, छोटियां मोटियां झड़पां होणगीਆਂ, हुण 20 साल ਇਹ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦੇ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ।
काम नरेंद्र, काम सरेंडर। जब ये प्रधानमंत्री बने थे, देश में ये शेर बनते हैं, दहाड़ते हैं, हम पर दहाड़ते हैं, बाहर जाते हैं, मालूम पड़ जाता है ये तो मिट्टी का शेर है। तो ये मिट्टी का शेर देश का प्रधानमंत्री है, कोई बात नहीं, देश ने चुना है, मान लेते हैं। लेकिन देश की छवि के साथ खिलवाड़ करने का काम मिट्टी के शेर को हम नहीं। हरा दिया भारत को ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे बाहर जाएं, सेलिब्रेशन पार्टी तो आप ही के घर होगी दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है भाई, तुम खुद जाके देख लो। मैं 5-6 बार नूर खान एयरबेस पे लैंड कर चुका हूं। कह रहा भाई एक रफेल था, मैं वो दिखाना नहीं चाहता यहाँ पे, आई विल नॉट शो यू दैट। वो बहुत ही मतलब इट्स वेरी स्टूपिड यार। आप भी बोलोगे मेजर साहब आप ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये देखो हमने रफेल मारा, कह रहे हो कि रफेल को मार दिया। आदमी जो दिमाग से पैदल है उसको गधे के ऊपर बैठा दिया और बोला कि जा तू रेस कर। अब वो पागल आदमी कहां तक रेस करेगा गधे में, 2-3 स्टेप्स लेगा फिर नीचे गिर जाएगा। तुम लोगों की बेवकूफी, तुम लोगों की नालायकी, नाअहली और अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से अरबों रुपए का तुमने नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते। अगर मेरे पास 10 रुपए और आपके पास 10 रुपए तो हम दोनों के पास मिला के 20 ही रुपए हैं। वो 25 या 30 नहीं हो जाएंगे या 5 नहीं हो जाएंगे, वो 20 ही रहेंगे। कि अपनी कौम को बरगला दूं, अपनी कौम को झूठ बोल दूं, अपनी कौम को यह बोलूं कि हमने जीत को लेकर कहीं भी बहसोत्पादन नहीं है, फोटो उत्पादन चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर बेस गए। क्या आपको जीत के नायक की खनक सी नजर आती है? दुश्मन का पायलट क्यों नहीं सो पाता है, इस स्लोगन के सामने प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर उदास सी क्यों लगती है? क्या जीत के बाद मुस्कुराने पर पाबंदी है? तुकबंदी वाले भाषणों की तरह फोटो उत्पादन की यह शैली भी मदद नहीं कर रही जीत का जश्न पैदा करने में। आखिर यह कैसी जीत है जो सीज फायर की पीठ पर कई सवाल लेकर धमक पड़ती है? आपने पाकिस्तानी फौज को भी बता दिया है, पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का नाम लेकर लिखा है कि वे कश्मीर के मसले पर प्रयास करेंगे, तो भारत को नाम लेकर इसका खंडन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया जा रहा है। सूत्रों से खंडन करवाया जा रहा है। जिन सूत्रों ने गोदी मीडिया से इतना झूठ बुलवाया कि भारत आधा पाकिस्तान साफ कर चुका है, उन सूत्रों पर कौन भरोसा करे? ट्रंप ने अपनी बात सूत्रों के जरिए तो नहीं कही, तो उनके बयान का खंडन करने वाला यह सूत्र कौन है? क्या प्रधानमंत्री मोदी हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं? कौन है यह सूत्र? किससे पूछने के बाद ट्रंप के बयान का ऑफ रिकॉर्ड खंडन कर रहा है? जब सब कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीज फायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। क्या आपने गौर किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में 22 मिनट के संबोधन में कश्मीर का नाम तक नहीं लिया? पाकिस्तान में गृह युद्ध की चिंगारी सुलग उठी है। अब कभी भी यह चिंगारी पूरे पाकिस्तान को जलाकर राख कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत तेजी से यह खबर चल रही है कि जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है। इमरान की हत्या का आरोप पाक सेना और आईएसआई पर लगा है। अब पीटीआई के लाखों समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इमरान खान को उनके सामने जिंदा पेश किया जाए, तभी उन्हें यकीन होगा कि वो सलामत हैं। आवाम इस टाइम भरपूर अपील कर रही है कि जो इस मुल्क का हकीकी लीडर इमरान अहमद खान नियाजी साहब
उनको बाहर निकाला जाए। ये पाकिस्तान है। आप मुझे रोकने का ऑर्डर दिखाओ मेरा, मैं दिखाता हूँ मेरे बचाने का ऑर्डर। इमरान के नाम पर जलेगा पाकिस्तान। नियाजी खान के चहेतों ने पाक में गृहयुद्ध छेड़ दिया। जेल में बंद इमरान खान जिंदा या मुर्दा? लोग बहुत यहाँ पर फसाद होने वाला है, यहाँ पे कारकुन आज किसी सूरत भी नहीं। सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान राहत की सांस ले रहा था,